Is chapter 7, yeah, chapter 1, concept and types of pollution, right? Environmental pollution, chapter 7, environmental pollution. Concept and types of pollution. In the 1958 short story La Nuvola di Smog, the smoke cloud, the Italian author Italo Calvino described an imaginary city wrapped in, as the title suggests, a large cloud of smoke. Pollution here becomes a metaphor for everything bad in life. It is a literary account that demonstrates how environmental pollution has, since the second half of the 20th century, entered collective consciousness as one of the major problems that characterize our time. Environmental pollution is the unwarranted disposal of foreign and potentially harmful elements into Earth's natural resource pools such as water, land, air, and even sound and light that results in long or short term detriment to the atmosphere and its ecological health to negatively impact the living beings and the life both quantitatively and qualitatively. It is one of the biggest challenges of our time, posing a serious threat to ecosystems, human health, and the planet's sustainability. It is a global issue for both developed and developing economics caused by human activities such as industrialization, urbanization, and deforestation. Pollution disrupts natural systems and lead to severe consequences like climate change, biodiversity loss, and widespread diseases. What is the concept of pollution means? No need to know that la nuvola, the smoke cloud, a large cloud of smoke and all. What we have to know is that what is pollution? Yeah, concepts of pollution. Okay, concept of pollution. Concept of pollution means what is pollution, right? So if you know what is pollution, no need to learn concept of pollution. Everything we dispose that is a waste is known as pollution, right? So leaving this, let's learn about types of pollutants. What are the types of pollutants? It is not necessarily mentioned. Types of pollutants is not necessarily mentioned. Concept and type of pollution we should learn. Okay, so there are major forms of pollution that are listed below along the particular contaminants relevant to each of them. Okay, बहुत सारे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है. एक है एयर पोल्यूशन, दूसरा वाटर पोल्यूशन, थर्ड सॉइल पोल्यूशन, फोर्थ लाइट पोल्यूशन, फिफ्थ नॉइज पोल्यूशन, सिक्स थर्मल पोल्यूशन एंड सेवेंथ इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, soil pollution, water pollution, air pollution, noise pollution, and radiation pollution. Only these five are mentioned in our syllabus. Our source of air pollution. Okay, source of air pollution. Source is human-made source and natural source. Now, human-made sources are transportation. ओके, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स जो गैसोलाइन एंड डीजल यूज़ करते हैं पार्टिकुलरली, वो पॉल्यूटेंट्स एमिट करते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऐसे पॉल्यूटेंट्स वो एमिट करते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट्स वो छोड़ते हैं जब वो गैसोलाइन एंड डीजल यूज़ करके व्हीकल्स ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट. सो एक ह्यूमन मेड सोर्स ये हुआ. क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन में व्हीकल्स जो कि क्या होते हैं, गैसोलीन और डीजल्स यूज़ करते हैं, राइट. वो पॉल्यूशन एमिट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे पॉल्यूटेंट्स वो एमिट करते हैं. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़. ह्यूमन मेड सोर्स, एयर पोल्यूशन के सोर्स में ह्यूमन मेड सोर्स का इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है. नंबर 2, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स और जो बाकी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ है वो भी पोल्यूटेंट्स रिलीज़ करते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ओके, पार्टिकुलेट मैटर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर जनरेशन. जब मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं एंड पावर जनरेशन का काम कर रहे होते हैं उस वक्त क्या होता है, ये सारे पार्टिकुलेट मैटर्स वगैरह रिलीज़ होते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में.
ट्रांसपोर्टेशन में व्हीकल्स पॉल्यूशन रिलीज करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में पावर प्लांट, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ क्या करते हैं, पॉल्यूशन एमिट करते हैं। दोनों में एक कॉमन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर। सो दे एमिट पॉल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर ह्यूमन मेड सोर्स में, ट्रांसपोर्टेशन में एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड दिस पार्टिकुलेट मैटर एंड ऑल्सो एड during manufacturing and power generation. Number 3 is energy production, human made source energy production. जब वो लोग फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग के लिए फॉसिल फ्यूल रिलीज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग फॉसिल फ्यूल रिलीज़ करता है, और वो क्या करता है, वो pollutants release करता है, like carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen oxide. So here we can know that कि nitrogen oxide हर चीज़ release कर रही है, even the third one releases nitrogen oxide. Okay. Energy production में human made resources में energy production any 3 we can write, and in natural 1 we can write 3, right? एनर्जी प्रोडक्शन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एंड हीटिंग के लिए बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, और जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तीनों चीज़ वो रिलीज़ करता है. फोर्थ है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे कि फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, क्रॉप्स को जलाना, ये सब क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट्स रिलीज करता है, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड इवन पार्टिकुलेट मैटर्स. ओके. हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जैसे कि काठ वगैरह जलाना, वुड्स जलाना, या कोई भी दूसरा सॉलिड फ्यूल्स जलाना कुकिंग के लिए एंड हीटिंग के लिए, एज वेल एज गैस स्टोव्स भी चलाएंगे हम लोग, तो वो पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ करेगा एयर में. ओके, वो पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ करेगा एयर में. वेस्ट डिस्पोजल, अगर हमने घर के जो सारे वेस्टेज है, जो कचरा वगैरह है, उन लोगों को ओपन बर्निंग करेंगे एंड लैंडफिल एमिशंस भी करेंगे, तो भी वो किस चीज़ पे कंट्रीब्यूट करेगा, एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करेगा. नेचुरल सोर्सेस, वाइल्ड फायर्स, नेचुरल सोर्स लाइक वाइल्ड फायर. ओके, वाइल्ड फायर अगर जंगल पूरा का पूरा जल गया तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक रिलीज होगा एंड पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में. लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक और पार्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा अगर वाइल्ड फायर हुआ तो, नेचुरल सोर्स में. ठीक है. नेक्स्ट है वोल्केनिक इरप्शन. नेचुरल सोर्स का वोल्केनिक इरप्शंस क्या रिलीज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है एंड बाकी दूसरे गैसेस भी रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में. Volcanic eruption releases sulfur dioxide and other gases into the atmosphere. Dust storms. 3 is dust storms. Wind-blown dust can significantly increase particulate matter levels in the air. हवा में क्या कर सकता है, अगर विंड ब्लोन डस्ट होगा, जो हवा में बहने वाला जो डस्ट होगा, धूला होगा, वो क्या कर सकता है, पार्टिकुलेट मैटर को इंक्रीज कर सकता है इन द एयर. ओके. पोलन एंड मोल्ड स्पोर्स, ये कुछ बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स है जो प्रेजेंट होते हैं एयर में, स्पेशली सर्टेन सीजन्स में, सिर्फ कुछ सीजन्स में ये एयर में प्रेजेंट होते हैं, ये बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स है. ओके. नेचुरल एमिशंस फ्रॉम प्लांट. प्लांट क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्लांट रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो ये एक नेचुरल एमिशन हुआ प्लांट की तरफ से. Impact of air pollution. Now what is the impact of air pollution? हेल्थ में इम्पैक्ट होगा. इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन मीन्स हेल्थ में इम्पैक्ट होगा. हेल्थ में क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है एयर पॉल्यूशन से. मेन थिंग ऑफ एयर इज टू नो कैंसर हो सकता है. इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, कैंसर, और इसमें हम लाइक चर्नोबिल डिजास्टर का एग्जांपल दे सकते हैं, फुकुशिमा डाइची का एग्जांपल दे सकते हैं. ऐसे जो नेचुरल डिजास्टर्स हुए, नॉट नेचुरल, ह्यूमन मेड डिजास्टर्स ही है वो, जो ह्यूमन मेड डिजास्टर्स हुए हैं, उन डिजास्टर्स को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है. You can watch the video of disasters like Fukushima Daiichi, Chernobyl disaster, Bhopal gas tragedy in Bhopal, Madhya Pradesh in India only, right? That are the live examples
इम्पैक्ट ऑफ ऑन हेल्थ का, कैंसर हो सकता है उन चीज़ों से, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी हो सकती है. दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स वी हैव. बट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ में कैंसर दिया हुआ है. तो कैंसर एक लार्ज स्टडी ऑफ मोर देन 57,000 women फाउंड लिविंग नियर मेजर रोडवेज में इंक्रीज अ women's रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर. उन्होंने क्या कहा है कि अगर स्टडी में पता चला है कि 57,000 वुमेन कहाँ पे रहती है, रोडवेज में रहती है, सड़क किनारे 57,000 वुमेन रोडवे में रहती है. और ये क्या करता है कि ये वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ा देता है. 57,000 वीमेंस क्या कर रही है, एक लार्ज स्टडी में पता चला है कि 57,000 से भी ज़्यादा लड़कियाँ, ज़्यादा वीमेंस क्या कर रही है, रोडवे के साइड्स में बैठ रही हैं. तो ये क्या कर रहा है, वीमेन का ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ा रहा है. बी, occupational exposure to benzene, an industrial chemical and component of gasoline, can cause leukemia and is associated with non-Hodgkin's lymphoma. This disease is unknown to me, but ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हुआ अगर बेंजीन में ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हुआ, ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल कंपोनेंट है, गैसोलीन का कंपोनेंट है, इंडस्ट्रियल केमिकल और कंपोनेंट है ये गैसोलीन का, ठीक है, वोनाइटॉल. ये क्या कर सकता है, ल्यूकेमिया नाम का एक डिजीज़ कॉज कर सकता है. एंड ये किससे एसोसिएटेड है, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा से एसोसिएटेड है. नंबर सी, लॉन्ग टर्म स्टडी 2000 से लेकर 2016 तक का एक लॉन्ग टर्म स्टडी में क्या पता लगता है कि एसोसिएशन पता लगता है लंग कैंसर के बीच में, लंग कैंसर इंसिडेंट में एंड इंक्रीज रिजाइलेंस और कोल फॉर एनर्जी जनरेशन, इन दोनों के बीच में क्या पता चलता है, एसोसिएशन पता चलता है, लिंक पता चलता है. नंबर डी, यूजिंग अ नेशनल डाटा सेट ऑफ ओल्डर एडल्ट्स, researchers found that 10-year-long exposures to PM2.5 and NO2 increased the risk of colorectal and prostate cancers. तो यहाँ कहा गया है कि नेशनल डाटा सेट, ओल्डर एडल्ट्स के नेशनल डाटा सेट लेने के बाद रिसर्चर्स ने क्या पता किया है कि 10 साल का लॉन्ग एक्सपोजर्स होता है PM2.5 एंड NO2, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है रिस्क, कोलोरेक्टल एंड प्रोस्टेट कैंसर्स का रिस्क, ये चीज़ इंक्रीज करता है. नंबर 2 इज़ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इम्पैक्ट ऑफ ऑन हेल्थ कैंसर. नंबर 2 इज़ कार्डियोवास्कुलर डिजीज. फाइन पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं वो इम्पेयर कर सकते हैं ब्लड वेसल फंक्शन को, ठीक है, एंड जो कैल्किफिकेशन है आर्टरीज में उसको भी स्पीड अप कर सकते हैं. no need of learning this much, like okay. So कुछ ओल्डर के लिए, ओल्डर अमेरिकन के लिए एक्सपोजर टू TRAP, ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन, कैन रिजल्ट इन लोअर लेवल्स ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, समटाइम्स कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीजिंग द रिस्क फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज. ओके, मतलब कुछ ओल्डर अमेरिकन जो है एक्सपोजर टू दिस ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन, ये ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन क्या होता है, क्या ये किस चीज़ पे रिजल्ट कर सकती है, लोअर लेवल्स ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. अब लिपोप्रोटीन आई डोंट नो व्हाट इज दैट एक्चुअली, बट लिपोप्रोटीन की हाई डेंसिटी लेवल को लोअर कर सकती है, ये कहा गया है. इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी, ओके, लिपोप्रोटीन इज ऑल्सो समटाइम्स नॉन एज गुड कोलेस्ट्रॉल. ओके, अगर ये इंक्रीज हुआ तो रिस्क बढ़ सकता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का. नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम NTP रिपोर्ट के अनुसार TRAP एक्सपोजर जो है, ट्रैफिक रिलेटेड एयर पॉल्यूशन एक्सपोजर जो है, वो इंक्रीज कर सकता है प्रेग्नेंट वुमेन्स रिस्क फॉर डेंजरस चांसेस इन ब्लड प्रेशर. प्रेग्नेंट वीमेन जो है उनको ब्लड प्रेशर में डेंजरस चेंजेस हो सकते हैं, ऐसा कहा गया है. TRAP एक्सपोजर इंक्रीज कर सकता है ब्लड प्रेशर, जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही डेंजरस है, रिस्क बड़ा काम है. इसको क्या भी कहते हैं, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर. ओके, जो लीड करता है प्री टर्म बर्थ को, मतलब जल्दी 9 महीने में जन्म लेगा बच्चा तो 7 महीने में जन्म ले लेगा, लाइक दैट. तो ऐसा होने से क्या होता है कि वेट, बच्चा का जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, मैटरनल एंड फेटल इलनेस एंड डेथ, और माँ जो है वो मर भी सकती है या वो बहुत ही सीरियस बीमार में भी जा सकती है, ऐसा कहा गया है. रेस्पिरेटरी डिजीज. नंबर 3, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड रेस्पिरेटरी डिजीज.
एयर पॉल्यूशन इफेक्ट कर सकता है लंग डेवलपमेंट को एंड ये इम्प्लीकेटेड है एम्फेसिमा, अस्थमा, अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस के डेवलपमेंट में ये बहुत ही इम्प्लीकेटेड है, ठीक है। जैसे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीजेस इफेक्ट कर सकता है, ये ऐसे डिजीजेस इससे हो सकते हैं। एस्थमा प्रिवेलेंस में इंक्रीज आ सकता है अर्बनाइजेशन में, मतलब अर्बन एरियाज़ में इस चीज़ को ज़्यादा वो किया गया, क्योंकि अगर वहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है, अगर जहाँ पे ट्रैफिक होता है वहाँ पे पॉल्यूशन होता है, राइट, एंड वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ को कॉज करता है। एस्थमा केसेस चिल्ड्रन लिविंग इन लो इनकम अर्बन एरियाज, अब लाइक लो इनकम अर्बन एरियाज मीन्स जिनके पास अपना कार नहीं हो, जिनके पास मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ना हो, वैसे लो इनकम जो अर्बन एरियाज में रहने वाले लो इनकम लोग हैं उनके बच्चों को एस्थमा जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। रिसर्च जो 2023 में पब्लिश्ड हुआ था उसमें 2 एयर पोल्यूटेंट्स को कवर किया हुआ है, ओजोन एंड PM2.5। ओके, एस्थमा रिलेटेड चेंजेस चिल्ड्रंस एस्थमा रिलेटेड चेंजेस, अगर चिल्ड्रंस में एस्थमा रिलेटेड चेंजेस इन दोनों के वजह से पता चला है, PM2.5 एंड ओजोन। एक स्टडी में पता चला है कि 50,000 वीमेन अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में 50,000 वीमेन जो है वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू PM2.5, PM10 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब क्रॉनिक ब्रोंचिटिस से सब कुछ लिंक्ड है, या कुछ केमिकल से या कुछ एयर पॉल्यूशंस के नाम में, पॉल्यूटेंट्स के नाम है। ओके, 2020 में क्या होता है कि मेजर हेल्थ चैलेंज आ जाता है जो कि कोविड-19 पेंडेमिक होता है। पेंडेमिक मीन्स वर्ल्ड वाइड फैलने वाला बीमारी। कोविड-19 जो होता है 2020 में वो एक मेजर हेल्थ चैलेंज है। तो इस हेल्थ चैलेंज की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग मर जाते हैं, लाइक वाइल्ड फायर स्मोक के जैसा ही हो जाता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, एसिड रेन हो सकता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होंगे तो एसिड रेन हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करेंगे तो एसिड रेन होगा, और ये किसको डैमेज करेगा, ट्री, अल्टर्स, सॉइल केमिस्ट्री, एसिडिफाइज वाटर बॉडीज। ओके, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन भी हो सकता है, अगर एयर पॉल्यूटेंट जैसे कि ओजोन प्लांट टिश्यूज़ में आया तो वो क्या होता है, वो डैमेज हो सकता है, प्लांट टिश्यू डैमेज हो सकता है, एंड फोटोसिंथेसिस कम होने की वजह से प्लांट ग्रोथ में थोड़ा चेंज आ सकता है, एंड प्लांट डिजीजेस एंड मतलब डिजीजेस एंड पेस्ट्स क्या हो सकता है, वल्नरेबल हो सकते हैं, उनके लिए प्लांट मर सकता है। वाटर पोल्यूशन हो सकता है, ओके, एयर पोल्यूटेंट्स से वाटर बॉडीज़ में जाके एयर पोल्यूटेंट डिपॉजिट हो गया तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ को हार्म कर सकता है थ्रू रेस्पिरेटरी इश्यूज़, राइट। अब हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगे तो जानवरों को भी होंगे ना, ये वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट ही हुआ, राइट। एयर क्वालिटी अगर रिड्यूस हुआ तो विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, राइट, विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी एयर पोल्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से देखना मुश्किल हो जाएगा। एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन क्रॉप यील्ड्स को रिड्यूस कर देगा, क्रॉप्स को डैमेज कर देगा थ्रू ओजोन एक्सपोजर। ओके, ओजोन निकलने की वजह से क्रॉप यील्ड रिड्यूस हो जाएंगी, क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे, एंड ये किस चीज़ को कंट्रीब्यूट करेगा, सॉइल एसिडिफिकेशन को कंट्रीब्यूट करेगा। So what are the control measures of air pollution? Control measures are combustion, absorption, using mechanical devices like dust bags, filters to collect and filter poisonous, harmful and unwanted gas particles or dust emitted by various industries, okay, such as cement plant and all. Using filterless devices like electrostatic precipitors, okay, these are the things control measures of air pollution.